So immediately after formation of the pollen tube, the generative cell it divides mitotically and forms two male gametes, and these two male gamete follows the tube nucleus. तो इस तरह तैयार हो जाता है आपका male gametophyte. So generative cell divides mitotically to form two haploid male gamete which are non-motile, and now this pollen tube is going to carry these non-motile gametes towards the ovary. So ultimately the first step is the formation of pollen tube carrying two male gametes, और इस प्रोसेस के लिए दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, बोरॉन एंड कैल्शियम, जिसमें बोरॉन इज वेरी असेंशियल और वाइटल फॉर द प्रोसेस ऑफ व्हाट, जर्मिनेशन. Now the pollen tubes start growing towards the ovary. That is the second phase, that is movement of pollen tube towards ovary. The pollen tube shows apical growth. Apical मतलब the tip of the pollen जो tube है, it keeps on growing, okay, and this is because of the chemotaxis movement. जो synergid है, actually the pollen tube है, now it is moving towards the synergid बिकॉज ऑफ द केमिकल अट्रैक्शन कैल्शियम, बोरॉन और इनोसिटॉल कॉम्प्लेक्स की वजह से, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट है कि आपका जो ये दो मेल गैमेट है ये एम्ब्रियो सैक के अंदर पहुंचना चाहिए, और उसके लिए पोलन ट्यूब जो है दे आर केमिकली अट्रैक्टेड. ओके, सो दैट्स व्हाई देयर इज कीमोट्रोपिक मूवमेंट, जिसको कीमोटैक्सिस कहते हैं. ओके, एंड व्हाइल डूइंग सो जो आपका पोलन ट्यूब है इट पासेस और पेनिट्रेट्स थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा, और आपका यू कैन सी व्हाट, स्टाइल. तो स्टाइल और स्टिग्मा के टिश्यू को पेनिट्रेट करते दे आर गोइंग टुवर्ड्स द ओवरी. द पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग, द पोलन ट्यूब इज ग्रोइंग. So here we can see the pollen tube has passed through the style and reached the ovary. So this process in which the two male gametes are carried by pollen, okay, and they are non-motile, इस process को कहते हैं siphonogamy. This process is called siphonogamy. So this is the important process, क्योंकि इन केस ऑफ यू कैन सी प्लांट्स जनरली द मेल गैमेट्स मोटाइल नॉन मोटाइल होते हैं, और उनको अभी एम्ब्रियो सैक तक पहुंचाने का काम पोलन ट्यूब कर रहा है. तो साइफोनोगेमी इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स वाया पोलन ट्यूब. सो आफ्टर रीचिंग द ओवरी, तो पोलन ट्यूब अभी ओवरी में पहुंच गया है, अब इसे एंटर करना है नियर द माइक्रोपाइल एंड. यहाँ पे तो पोलन ट्यूब के पास तीन तरीके हैं जिससे वो ओव्यूल के टिप तक पहुंच जाए, मतलब नियर दिस एग एपरेटस नियर द सिनर्जिड. ओके, एंड दिस इज गाइडेड बाय द ऑब्ट्यूरेटर्स. तो ऑब्ट्यूरेटर जो ओवरी में होता है वो गाइड करता है इस पोलन ट्यूब को, सो दैट इट कैन रीच टू द आपका एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स विच एंड, माइक्रोपाइल एंड पे उसको रीच करना है. तो लेट्स सी ये तीन पाथवे कौन से हैं. तो देयर आर थ्री वेज बाय विच पोलन ट्यूब कैन रीच नियर द एम्ब्रियो सैक टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड. तो वन ऑफ द पाथवे इज दैट जो पोलन ट्यूब है इट पेनिट्रेट्स थ्रू द चलाजा and enters into the ovule. So this process is called chalazogamy, the entry of pollen tube via chalaza. So let's see how it will reach to here. Okay, so the movement is continued. So this is chalazogamy, because we can see the pollen tube has entered through the chalaza, penetrated through the tissue of the ovule, ultimately वो micropyle end की तरफ पहुंच गया है. So this is the chalazogamy. So the second way by which the pollen tube can enter into the ovule is via integument. So this is the integument, the two layers, integument. And if the pollen tube passes through the integument, that is called mesogamy. So mesogamy is the second pathway by which you can see
pollen tube enters into ovule, and here also the pollen tube is crossing the integument and will reach the micropyle end. तो as the tube grows, the male gamete जो है वो भी पीछे follow करते हैं. And now we can see the pollen tube has reached near the egg apparatus of the embryo sac. So this is the second way by which the pollen tube can enter into ovule, जिसे कहते हैं mesogamy, and it can enter from any part of the integument. It can enter from here on the left side, depending upon through which you can see what pathway it is able to penetrate the integument. But the most common, you can see, the pathway through which the pollen tube reaches the embryo sac in the ovule is via the pore at the tip of the ovule, जिसे micropyle कहते हैं. This is the most ideal, you can see, and the fastest, you can see, process of movement towards the ovule, क्योंकि it passes through the space between the ovary and the ovule, and यहाँ पे जो growth होता है ये fastest होता है. Okay, this is the most ideal, you can see, movement. तो इस process को कहते हैं porogamy. क्या कहते हैं? Porogamy. Let's see. The pollen tube is growing. The two male gametes are following the pollen tube. And thus we can see the pollen tube has reached the ovule near the egg apparatus, carrying the two male gametes, and complete the process of porogamy. And this process is the most ideal and the common pathway in most of the angiosperm, जिसके जरिए pollen tube जो है ovule के अंदर enter करता है near the egg apparatus, especially near the synergids. And the entire process is guided by the synergids. तो synergid के ऊपर ovuloregulator होता है, जिसमें कैल्शियम, बोरॉन और इनोसिटोल का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, यही पोलन ट्यूब को synergid की तरफ अट्रैक्ट करता है. और इसके बाद में नेचुरली जो प्रोसेस होने वाला है, which is very interesting, कि पोलन ट्यूब अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा और उसमें synergids plays a very important role. So that we will see now. So thus in the same diagram we can show the three pathways by which pollen tube can enter. तो पहला है via chalaza called chalazogamy, via integument that is mesogamy, और जो सबसे कॉमन है वो है through micropyle that is called porogamy. So you can take the screenshot of this part. So we have seen that pollen tube has reached the ovule near the egg apparatus. अब जो टारगेट है वो है कि पोलन ट्यूब को अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, कि पोलन ट्यूब जो है तीनों पाथवे से, चलाजा से आएगा, या तो इंटीगुमेंट से आएगा, नहीं तो माइक्रोपाइल से आएगा, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एंट्री है इट इज पॉसिबल ओनली थ्रू synergid. It is possible only through synergids, that is the egg apparatus. Okay, इसका मतलब पोलन ट्यूब कहीं से भी आए, अगर वो चलाजा से आता है तब भी आपको एग एपरेटस के पास ही उसको आना पड़ेगा. मींस आपका इंटीगुमेंट से आता है तब भी उसको एग एपरेटस के पास ही आना पड़ेगा. एंड देन इट पेनिट्रेट्स वन ऑफ द सिनर्जिड. दो सिनर्जिड में से किसी एक के अंदर वो पेनिट्रेट करता है. ओके, एंड एक फिलिफॉर्म एपरेटस एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पोलन ट्यूब जो है ये बर्स्ट होगा. लेट्स सी हाउ. So the pollen tube enters into one of the synergid, और इस प्रोसेस में synergid डीजेनरेट होता है, और जो टिप है आपका, you can see the pollen tube start absorbing the nutrients of the synergid, degenerated you can see synergids of by filiform apparatus. और फिर होता ये है कि the tip of the pollen tube actually swells because of endosmosis. It absorbs, you can see, water from the degenerating synergids, via the filiform apparatus. तो पोलन ट्यूब का जो न्यूक्लियस था वो डीजेनरेट हो चुका है इन द प्रोसेस. तो ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो डीजेनरेट, और फाइनली ये जो ट्यूब है ये रेडी हो गया अभी बर्स्ट होने के लिए. द पोलन ट्यूब फाइनली बर्स्ट ओपन, and ultimately the two non-motile male gametes are released into the embryo sac. So this is the process by which ultimately जो दो male gamete थे
ये पोलन ट्यूब में पास कर रहे थे, फाइनली एम्ब्रियो सैक में एंटर करते हैं और अभी उनका नेक्स्ट स्टेप होगा रेस्पेक्टिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वन ऑफ द मेल गैमेट is released near the egg cell and second is released near the polar nuclei. Now you can take the, you can see screenshot of this, you can see right, okay. And now the final stage of double fertilization as we have discussed in the previous video, okay. अभी हम लोग शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी द लास्ट फेज हमने डिटेल में स्टडी किया था लास्ट टाइम, लेकिन शॉर्ट में अभी देखेंगे क्या होता है कि द फर्स्ट मेल गैमेट, तो वन ऑफ द मेल गैमेट वो एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा जिसको कहते हैं सिनगैमी, द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। और जो सेकेंड मेल गैमेट है इट यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियर और सेंट्रल यू कैन सी न्यूक्लियर जिसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन विच इज कॉल्ड सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो बोथ द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ओके। तो इसके लिए इसको प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ओके। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपका ये एंटीपोडल्स और ये सिनर्जिड्स ये डीजेनरेट हो जाते हैं। लेट्स सी हाउ। सो कैन सी द फर्स्ट मेल गैमेट विच इज एन हैप्लॉइड is united with egg cell which is also haploid और उससे बनता है zygote, that is diploid zygote बनता है which is the primary fertilization या main fertilization, और इसी zygote से finally बाद में embryo बनने वाला है which we have discussed in the last video, okay. So this is the primary actual main fertilization. तो first male gamete has united with the egg cell जिससे zygote बनता है। सो अल्टीमेटली पहले मेल गैमेट यानी कि पहला दूल्हा था उसकी शादी तो दुल्हन के साथ हो गई। अब जो दूसरा मेल गैमेट है उसके साथ क्या होता है, तो वो बोलता है मेरा क्या होगा, तो उसको बोलते हैं कि भाई दुल्हन की सहेली है, जुड़वा सहेली, उसके साथ शादी करोगे या उसकी जुड़वा बहन है उसके साथ शादी करोगे। तो सेकेंड मेल गैमेट ऑल्सो गेट द पार्टनर। तो सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द पोलर न्यूक्लियर विच इज ट्रिप्लॉइड और उससे तैयार होता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ए ट्रिप्लॉइड यू कैन सी व्हाट सेल। तो इस तरह दोनों मेल गैमेट्स जो है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो पहला है सिनगैमी दैट इज द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड इज द ट्रिपल फ्यूजन विच इज द सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। So the finally you can see in the embryo sac you will find formation of zygote which is the result of the first fertilization and formation of PEN primary endosperm nucleus is ultimately primary endosperm cell बनता है which is a triploid structure, इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं and the process of double fertilization is complete। और इसके साथ साथ you will find the antipodal is degenerating, the synergid is degenerating और साथ में पोलन ट्यूब भी क्या होता है डीजेनरेट होता है। फाइनली एम्ब्रियो सैक में आपको दो सेल्स दिखेंगे, एक ट्रिपलॉइड सेल विच इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसी से बनता है न्यूट्रेटेड टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म, और आपका ये जो जाइगोट है जिसको ऊस्पोर भी कहते हैं इससे तैयार होता है एम्ब्रियो, ओके। और इस प्रोसेस में अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 4 सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, 4 सेल्स आर इन्वॉल्व, 2 मेल गैमेट, एक आपका एग सेल और एक आपका पोलर यू कैन सी व्हाट न्यूक्लियस सेल, ओके। और 5 न्यूक्लियस में मेल गैमेट के एक देन एक सेल का एक और आपका 2 न्यूक्लियस ऑफ द पोलर न्यूक्लियस। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो आप प्रीवियस वीडियो में देखिए जिसमें आपको डिटेल में यू कैन सी इस एस्पेक्ट को हमने कैरेक्टरिस्टिक जो डबल फर्टिलाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडे द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो उसका सिग्निफिकेंस के लिए एक्चुअली प्रीवियस वीडियो आप चेक कीजिए, उसमें सिग्निफिकेंस बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ओके स्टूडेंट्स। नाउ टेक द यू कैन सी स्क्रीनशॉट एज आई मूव फ्रॉम द यू कैन सी व्हाट फ्रेम, okay, and we'll meet next time with pollination. We'll understand the process of pollination.